Now guys, after doing the restricted permutation, uh, the next type of restricted permutation, the next term which comes into it is to find the rank of any word in a dictionary, right? What does this means? Suppose we have a word called Ram, right? Now, if all the letters of the word Ram is arranged, right, then how many different type of words with or without meaning can be formed? The answer will be factorial 3, that is 6 word will be there, right? Which are those 6 words? Because they are, this value is very small, we can practically write the words. So the first word will be, let's say, AMR. Okay. In alphabetical order I am writing uh, AMR, then we have ARM, then we have MAR, then we have MRA, and lastly we have RAM and RMA, right? So these are the 6 arrangements of the word RAM, RAM in all possible ways, and I'm writing all those 6 arrangement in alphabetical order as it is being done in dictionary, right? For example, we all know in alphabetical order, if we are placing, the first letter will come A, and in alphabetical order M comes before R. So the 6 arrangement of the word RAM is written here in alphabetical order. So in all there will be 6 words. Now if I ask you what will be the ranking of the word RAM if the letters of the word RAM are arranged in alphabetical order, taking all at a time. So as you can see, I've written all the words in alphabetical order. So what is the ranking of the word RAM means which word is RAM here. You can see that the third, fourth, fifth word is the RAM, right? So if somebody asks you what is the rank of the word RAM in a dictionary made with the letters of the word RAM taking all at a time, your answer would be the ranking of the word RAM is 5, right? Clear? Since this word is very small word, we can manually find the position of the word RAM or the ranking of the word RAM. But if the word is a big one, right? If a word is of 6, 7, 8, 9 letters, and if somebody asks you the rank of that word in a dictionary made with the letters present in that word, right? So it will be a difficult task to do manually. For that sake, we adopt a method to find the rank. Now, for school level, my method is different, and for competition level, it's different. It's just 30-second work in competition level, right? But in school level, you have to show the working, you have to show the method. So, firstly, I will show you the school level method of finding the rank, right? Now, let me pick a word. Question will be, find the rank of the word mother in a dictionary made with all the letters of the word mother, right? Means you have to arrange all the letters of the word mother, right? And you have to make it a dictionary. With those words, you have to make it a dictionary, and you all must be knowing making dictionary means the word which comes in alphabetical order first will occur first, right? So the question is, find the rank of the word mother in a dictionary made with all the letters of the word mother. Now how to find the rank of the word mother? Firstly,
सबसे पहले there will be how many words if we arrange all the letters of the word mother, how many word dictionary it will be? So there will be factorial 6 arrangement of the letters of the word mother. Therefore there will be factorial 6 words with or without meaning in that dictionary, right? In that dictionary. अगर मैं इनके लेटर्स से डिक्शनरी बनाऊं, सबको लेकर 6 लेटर वर्ड का डिक्शनरी बनाऊं, तो उस डिक्शनरी में टोटल वर्ड्स कितने होंगे? तो यू ऑल कैन सी देयर विल बी फैक्टोरियल 6 वर्ड्स. फैक्टोरियल 6 मीन्स 720 वर्ड्स का डिक्शनरी होगा, राइट? 720 वर्ड का डिक्शनरी बनेगा. अब उस 720 वर्ड के डिक्शनरी में मदर वर्ड का पोजीशन या रैंक क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट? तो टेक्निकल पार्ट वी विल डिस्कस सो दैट यू कुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? लॉजिक मैं बाद में लिख दूंगा, लेकिन पहले इसको अटैक कैसे करना है. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज नोट द वर्ड मदर, राइट इट डाउन, कैपिटल लेटर्स में लिखो. फिर इसमें जो भी लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो. जैसे the word E comes first in alphabetical order, so we'll write E, then H, M, O, R, T, right? We have arranged the letter of the word mother in alphabetical order. Now after that what are you going to do? Note down, there is no repetition here, that must be paid heed to, right? There is no repetition. Now technically how to solve this problem? Very first, there are 6 letters in this word. You draw 6 vacant places, right? In the next line, you write the first letter of the word mother and then write 5 places. Draw 5 places. थर्ड स्टेप में आप मदर का पहला 2 लेटर लिख दोगे और उसके बाद 4 जगह बचा है लिख दोगे, राइट? सिमिलरली आपको लिखते जाना है. फिर एम ओ के बाद क्या है मदर में? टी. एम ओ टी लिख दो और फिर 3 जगह बना दोगे क्योंकि 6 लेटर का वर्ड है. फिर एम ओ टी एच लिख देना, फिर 2 जगह बचेगा. फिर एम ओ टी एच ई लिख देना, राइट? 1 जगह बचेगा. फिर लास्ट में, राइट, लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लास्ट प्लेस है ये. तो सबसे पहले आप क्या करोगे टेक्निकली कि आपसे ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जितने लेटर्स हैं उतना खाली प्लेसेस बना दो या बॉक्सेस. फिर मदर का पहला लेटर लिखकर 5 प्लेसेस बना दो. फिर पहला 2 लिखकर 4 प्लेसेस बना दो, सो ऑन, राइट? बना दिया. अब आपको हर स्टेप में क्या करना है, पे हीड टू माई लैंग्वेज. मदर स्टार्ट्स विथ एम. एम से पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स आ रहे हैं यहाँ से देखो. तो एम से पहले वी हैव 2 लेटर्स, राइट? तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. 2 वेज किससे? ई से या एच से, बाई ई और बाई एच, राइट? तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज. तो पहली जगह को आप किससे कैसे भरोगे? तो मदर का जो पहला लेटर दिख रहा है, गिवन वर्ड का जो पहला लेटर है, उससे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 2 लेटर्स आ रहे हैं, तो आप 2 लिख दोगे. और जितना जगह बचा उतने ही लेटर्स बचे हुए हैं और रेपिटेशन नहीं है, तो सीधा लिख सकते हो फैक्टोरियल 5. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 5 लिख दिया. आंसर आ गया आपका. क्या आया? 120 इंटू 2 240. पहले आप लिखना सीख लो. उसके बाद आपने यहाँ क्या लिखा है? एम लिखा है ना. जो लेटर यहाँ लिखा है उसको यहाँ से हटा दोगे. हटा दिया आपने, काट दिया, ठीक है? कॉपी है तो काट दोगे, बोर्ड है मैं मिटा दे रहा हूँ. अब जैसा आपने यहाँ सोचा था, सेम लाइन ऑफ एक्शन यू हैव टू अप्लाई इट हेयर ऑल्सो. जैसे एम को भूल जाओ, पहला लेटर क्या दिख रहा है इस वर्ड में, क्योंकि एम तो ख़त्म हो गया. पहला लेटर क्या दिख रहा है? ओ. ओ से पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 2. तो यहाँ क्या लिखोगे? 2. और कितने, जितने जगह बच गए? फैक्टोरियल 4.
राइट, प्रोवाइडेड रेपिटेशन नहीं है। रेपिटेशन होता था तो यू ऑल नो कि उससे डिवाइड करेंगे हम लोग फैक्टोरियल से। इसका भी आंसर आ गया 48। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप अपने आप समझ गए होंगे। पहला 2 लेटर आपने क्या लिखा है, MO, तो M तो आपने हटा ही दिया, O लिखा है, O भी हटा दोगे। अब फिर वही सोचोगे जो आपने यहां सोचा था। सो थिंग्स आर सो सिंपल। सिर्फ फर्स्ट स्टेप को समझ गए तो बाकी स्टेप अपने आप हो जाएगा। अब पहला लेटर T है, T से पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 3, तो यहाँ लिखोगे 3, बचे हुए जगह है 3, फैक्टोरियल 3, यानी कि 80, राइट। नेक्स्ट में MOT है, T भी हटा दोगे आप। पहला लेटर H है, H से पहले कितने लेटर आ रहे हैं, ओनली 1, तो यहाँ 1 लिखोगे, इनटू जितना जगह बचा उतना फैक्टोरियल, आंसर इज 2। फिर MOTH, H भी हटा दोगे आप, जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है वो हटा दोगे। अब E से पहले कोई लेटर है, नो, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 0 वेज, तो ये आंसर 0 हो गया, राइट। फिर अब MOTE, E भी हटा दो यहाँ से। अब कौन सा लेटर बचा है, R, तो R तो यहाँ पे आना ही है, और यही वर्ड है मदर। इसको एक बार तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि इसका रैंक निकालना है, तो मदर तक जाना है हमें, राइट। आप ऐड कर दो, आपका रैंकिंग आ गया, तो ऐड करोगे तो दिस इज 21, 29, 2 कैरीज, 8, 10, 11, कितना कैरी हुआ, दिस इज 16, 18, 19, सॉरी 1 कैरी हुआ था, 309, यानी कि the ranking of the word mother is 309, that is 720 वर्ड के डिक्शनरी में मदर वर्ड कौन से पोजीशन में होगा, 309th वर्ड जो होगा वो होगा मदर, राइट। तो ये प्रोसेस है। अब एग्जाम में जब आप ये स्टेप लिखोगे तो आपको साइड में लिख देना होगा द वर्ड बिगनिंग विथ, आप लिख सकते हो वर्ड बिगनिंग विथ E और H, विथ E और H। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ड बिगनिंग विथ M तो है ही, विथ M के बाद O में क्या क्या आ रहा था, E और H, 2 वेज जो लिखते हो वो क्या है यहाँ पे, वो लिख दिया करो, E और H था, तो ME एंड MH, राइट। फिर यहाँ पे जो 3 लिए थे वो कौन कौन सा लेटर सा नोट कर लेना, तो वर्ड बिगनिंग विथ MO जो भी था, T से पहले E, MOH सो ऑन, है ना, ऐसे करके जो था MOR, राइट। तो वर्ड बिगनिंग विद दिस, स्कूल में ऐसे अगर लिख दोगे तो फुल मार्क्स आएगा और मिस्टेक कभी नहीं होगा आपसे। लेकिन मैंने ये वो वर्ड लिया जिसमें रेपिटेशन नहीं है, राइट। एक और ले लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब हम लोग रैंकिंग ऑफ द वर्ड, एक काम करते हैं, फादर कर देते हैं, रैंकिंग ऑफ द वर्ड फादर, राइट। तो फादर का रैंकिंग निकालेंगे हम लोग। तो फादर में कितने लेटर्स हैं, फादर में वी हैव हाउ मेनी लेटर्स, 6 लेटर्स, और कोई रेपिटेशन नहीं है, 720 वर्ड का ही डिक्शनरी होगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे खुद बता दो, फादर लिखोगे पहले और इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर गलत लिखोगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ए काउंट कर लेना अल्फ़ाबेट, ABCD है, EFGH IJKLMNOPQRO सॉरी F मिस हो गया ना, ABCDEFGH, उसके बाद H आ रहा है, राइट। फिर RT, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लेना। अब आप क्या करोगे, फिर वही चीज़, देखो टेक्निक देखना आप, हाउ यू प्रोसीड। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 लेटर का वर्ड है, 6 जगह बना दोगे, राइट। तो फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, पहला लेटर जो फादर में है उसको लिख के 5 जगह बना दोगे। फिर FA लिखोगे,
FA लिखकर 4 जगह बना दोगे, फिर FAT लिखकर 3 जगह बना दोगे, फिर FATH लिखकर 2 जगह बना दोगे, फिर FATHE लिखकर 1 जगह बना दोगे, राइट, सो ऑन। हो गया। अब आपको फिल करना है। फादर में पहला लेटर F है, F से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं? 2, तो यहाँ लिखोगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। 2 वेज क्या क्या है? A और E, ठीक है। ये इसलिए नोट कर रहे हैं ताकि जब हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे इसको। रिमेनिंग बच गया 5 फैक्टोरियल 5 240। चलो F यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जो लेटर यहाँ लिखा है उसको यहाँ से हटा देंगे, राइट। और सेम लाइन ऑफ एक्शन जो हम लोग पहले किया था। पहला लेटर क्या दिख रहा है? A से पहले कौन सा लेटर है? कोई लेटर नहीं है, तो ये 0 हो गया, 0 वेज। दिस कैन बी फिल्ड इन, क्योंकि A से पहले कोई भी लेटर नहीं मौजूद है। चलो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ FA पे। FA है तो अब जो यहाँ पे लेटर कटा हुआ नहीं है, A कटा हुआ नहीं है, ये काट देंगे, यहाँ से काट दिए। अब पहला लेटर क्या दिख रहा है यहाँ पे? T। T से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। कौन कौन से वो लेटर्स हैं T से पहले? नोट कर लेना, E, H एंड R, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 3, तो 6 इंटू 3 18 अगेन, खत्म। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, FAT, T को भी हटा देंगे। अब बताओ पहला लेटर क्या दिख रहा है? H से पहले कितने लेटर आ रहे हैं? 1, वो क्या है? E, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये फिर 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, FATH, H को भी मिटा देना। E से पहले कितना लेटर आ रहा है? कोई भी नहीं, 0 वेज, तो ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, FATHE, E को भी हटा दो, तो कौन सा लेटर बचा? R को तो यहाँ आना ही है, यही फादर हो गया, 1 वे। तो आपका आंसर कितना हुआ? ऐड करो, दिस इज 20, 260, 261। यानी कि फादर वर्ड का अगर हम लोग रैंकिंग निकालें इन अ डिक्शनरी मेड विथ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर, द रैंकिंग ऑफ द वर्ड फादर विल बी 261th वर्ड, राइट। अब इसको लैंग्वेज में स्कूल में लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? वर्ड बिगिनिंग विथ, ये इंपॉर्टेंट है स्कूल में लिखना, बिगिनिंग विथ A एंड E, A एंड E से बिगिन करता हुआ वर्ड, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं, 0 है यहाँ। यहाँ पे आ जाओ, वर्ड बिगिनिंग विथ FAE, FAE, FAH एंड FAR, लिख देना ऐसे, ख़त्म, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, वर्ड बिगिनिंग विथ FATE, FATE, ठीक है। फिर वर्ड बिगिनिंग विथ, ये तो 0 वेज हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? वर्ड बिगिनिंग विथ F, या ये तो वर्ड बिगिनिंग विथ FA, तो फादर ही हो गया पूरा, छोड़ सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। मैंने वो वर्ड लिया जिसमें रेपिटेशन नहीं था, राइट। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा।